Good afternoon, everyone. Is my voice clear? Yes, ma'am. Okay. So here only 18 students have joined. So let's wait for the other students. We will see the topics whichever we have seen in lab session. मीन्स की सर्कल वाला टॉपिक हमें देखना है. ठीक है, तो आज सर्कल के जितने भी क्वेश्चंस किए, गो थ्रू देम एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करके वो देखेंगे ही. बट पहले आपके कंसेप्ट वो वाले क्लियर कर दो, वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखना है. Okay, let's start our lecture. Here we had seen this last remark. Okay, first one was if the circle is centered at origin. अगर सर्कल का ओरिजिन सेंटर है, वो ओरिजिन है, तो उसका इक्वेशन किस टाइप का होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर टाइप का. वरना सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है वो लास्ट वाला, आपको जो दिख रहा है ये लास्ट वाला, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर plus y minus k whole square equals to r square, where the center is h comma k and the radius is r. And if this circle is centered at this origin, then its equation becomes x square plus y square equals to r square. Why? Because if we put 0 comma 0 instead of h comma k, then we will get this answer. This is the equation of a circle if its center is origin, right? And also there is another remark. The words are, the statement is, if the circle is centered at origin and it has a radius r equals to 1. If its radius is 1, then the equation becomes obviously x square plus y square equals to r square. R is 1, so 1 square, that is 1. X square plus y square equals to 1, and it is called a unit circle. This can be asked into in MCQ question. Okay, so ये remark आपको करनी है, दोनों remark in fact. ये हमने लिखा था last time. Now let's see the examples. Write down the example, write down the statement. Find the equation of a circle if the center and radius are
Okay, I think statement is written by everyone. Now let's see the first. If the center is like this and the radius is 2, find the equation of a circle if its radius and center are given. Okay, so let's see the first question. First sum. Center मीन्स की h, k, ठीक है, और रेडियस मीन्स r, ये दोनों दिए गए हैं. नाउ द जनरल इक्वेशन. So therefore the equation of a circle is क्या होगा, x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. Yes, इसमें वैल्यूज रखनी है तो x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square equals to 2 square. That is x x plus 3 whole square plus y minus 3 whole square equals to 4. So this is the answer. No need to expand these terms. Similarly, solve the second question. If the h comma k means the center is 0 comma minus 1 and radius is 9. Madam, x square plus y plus 1 square is equal to 81. Yes, सही है. Good. So the answer for second question is x square plus y plus 1 whole square equals to 81. પછી madam, x square plus y square plus 6 is equal to 16. Yes, very good. The answer for third equation, third sum is x square plus y square equals to, yes, 16. And for પછી madam, fourth, x plus 1 square y plus 4 square is equal, ના એક મિનિટ madam, बराबर છે. ये is x equal प्लस to स्क्वायर प्लस One. x y प्लस 2 का स्क्वायर करा 1. Yes. तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है मीन्स कि ये मैंने स्टेप्स जो है वो स्किप किए हैं. ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है. done madam. ओके, एवरीवन डन और नॉट? अगर नहीं हुआ है तो मुझे बताओ. बाकी है मैम, ओके आंसर तो पता चला लेकिन सॉल्व करना बाकी है. ओके ओके, सॉल्व कर दो. आपकी बुक में ये पूरे सॉल्यूशंस लिखने हैं, आंसर सिर्फ नहीं लिखने हैं.
Complete, ma'am. Okay. Next question. Find the radii and centers of the given circles. Okay. What we'll do? We compare. So comparing first का आंसर ये first का comparing the given equation with x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. We get the center, which is h comma k. It will become क्या होगा? 2, 2, 2 6, comma No? 6 Yes, and is r will equal to become 3. 3 square, that is 3. Yes, very good. Similarly, solve the other 0 questions. 0 and हाँ, 2 0, na. 0, no, 0, 0, it will be 2. square root 2, not only 2. Square root 2, madam. Yes. Then let me write only answers for the rest of the questions. So 0, Madam, 0. 5 comma 7 Yes, r છે 4. yes. बाकी ना सॉल्व करो चलो. मैम ये क्वेश्चन 1 मार्क में ही पूछा जाता है ना? हाँ, ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस है. ये 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. ये लास्ट 2 जो है वो. मैम इसमें भी तो आसान सा भी है कि क्या होगा वो पता चल जाता है. हाँ, बट फिर भी सेंटर के लिए आपको, सॉरी रेडियस के लिए, सेंटर तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, बट रेडियस के लिए आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगेगी. ठीक है, तो 2 to 3 मार्क्स में वो 4th 5th है वो पूछे जा सकते हैं. इसको हम रीराइट करेंगे. ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ हम -4x लिखते हैं तो उसकी लास्ट टर्म कौन सी हो सकती है? इसको 4 को हम लिख नेगेटिव सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एक्स. ठीक है, तो ये 2x तो है ही, ट्वाइस बी और ए क्या है? तो ये 4, सॉरी ट्वाइस ए और बी क्या है? 2 स्क्वायर दैट इज 4. ठीक है, और फिर वाई स्क्वायर -6y, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू वाई, तो 3 स्क्वायर दैट इज 9. ओके, 87 विल रिमेन एज इट इज. अब बैलेंस करते हैं क्वेश्चन इक्वेशन को. ये हमने एडिशन किया, तो इस साइड 100. भी हमें एडिशन करना होगा, या तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो इक्वल टू के इस साइड ही सब्ट्रैक्ट कर दो. दोनों तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्या मैम बन जाएगा? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस विल बिकम 100. 13, so 100. Yes. So now compare this equation with x minus h. So now 2 comparing, comma 3 10. yes, सही है. The equation with x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. Then we have the center equals to 2 comma 3 and radius is 10. Similarly, solve the fifth question and tell me the answer. I'll write only answer here.
मैम 5 -7 -5 -7 यस, -5 -7 और 1। यस, सही है, वेरी गुड। आई होप कि सबको समझ में आया ये। अगर लैब में अच्छे से आपने ध्यान दिया है तो ये बहुत इजी लगेगा आपको सॉल्व करना। -5 -7 આવી। एंड 1, यस, गुड कृपाल। बाकी के स्टूडेंट्स भी मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यस मैडम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, टॉपिक एक्चुअली, जो हमने देखा था वो, ठीक है। दी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। ये फिगर ड्रॉ करने के लिए आप स्पेस छोड़ देना, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दो। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी गलती है, गलती नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे 1 की जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट नंबर 1। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। अगर ये सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, सी आपको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस दिख रहा है, उसको टच कर रहा है कोई एक ही पॉइंट पे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक से ज्यादा पॉइंट्स में, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट की बात हो रही है। ऐसे अगर टच कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इस टाइप का। कैसे? तो ये लेंथ जो है वो के आपको लेंथ दिख रही है, ठीक है, ये लेंथ अगर होगी, अगर कंसिडर करते तो वो एच होती है, ये लेंथ के होगी। तो अब आपको ये रेडियस भी दिख रही है, मीन्स कि के लेंथ और रेडियस दोनों सेम है। तो अब ये बन जाएगा एच कॉमा आर। सिमिलरली अगर नेगेटिव साइडेड ये है, ठीक है, तो ये लेंथ एच है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ये लेंथ जो दिख रही है आपको, ये लेंथ वो के लेंथ है, और साथ में ये जो दिख रहा है आपको आर भी, रेडियस भी दिख रही है, मीन्स कि यहाँ पे भी क्या होगा, एच कॉमा आर, ठीक है। तो अब सेंटर इस टाइप का हो जाएगा, तो एच कॉमा के की जगह पे हम प्लस और माइनस आर लिखते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस के आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे इस टाइप का लिखते हैं। तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस और माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर विल बिकम द इक्वेशन इफ द सर्कल टचेस एट एक्स एक्सिस। फिगर आप बाद में ड्रॉ कर लेना, मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट, circle touching y axis, no need to write the number। तो इफ, व्यक्तिगत थोड़ा सा हाँ, बाकी लिखना था व्यक्तिगत। ओके, लिख दो। डन मैम। મેડમ આમાં h અને k ઇક્વલ હે ને પછી નામાં એચ અને કે ક્યાંથી ઇક્વલ થશે?
H અને H R. અને R. Yes, yes. क्योंकि ये जो लेंथ है वो h है और वो रेडियस भी है, इसलिए h और r दोनों सेम रहेंगे. So if the circle touches y axis, then its equation becomes like this. Okay. Now, related examples. Write down the example question. Find the equation of a circle which touches x-axis at origin. Yes. And has radius 2. And has radius 2. ठीक है, तो x एक्सिस पे टच कर रहा है, ये x एक्सिस जो दिख रहा है उस पे टच कर रहा है, मीन्स कि इस टाइप का कर्व होना चाहिए, राइट. और कहाँ पे, ओरिजिन पे, मीन्स कि इस टाइप का कर्व होना चाहिए. तो x एक्सिस पे टच कर रहा है ये सर्कल, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकते हैं, हमें पता नहीं कि कौन सा क्वाड्रेंट है. और रेडियस जो है वो 2 है, तो अगर ये सेंटर पॉइंट है हमारा, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये दोनों जो है वो रेडियस हो जाएगी, ठीक है. तो ये r इक्वल्स टू 2 है, रेडियस इज 2, r इक्वल्स टू 2. अगर यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट है तो इसकी भी ये r, ये दोनों r ही है, ठीक है, ये रेडियस 2 है. तो ये सेंटर पॉइंट, तो ये क्या होगा, अगर ये लेंथ r इक्वल्स टू 2 है तो ये सेंटर क्या हो सकता है, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 और पॉजिटिव साइडेड है तो 0,2. यस. और इस साइड अगर नेगेटिव साइडेड देखा जाए तो 0,-2 ये हो सकता है, ठीक है. मीन्स कि सेंटर कैसा मिला, 0,+or-2. ओके, अब आप खुद से कर सकते हो इसको सॉल्व. Okay, given that r equals to, given that the radius r equals to 2. Now x एक्सिस को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट, सॉरी, ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो फ्रॉम द फिगर we can say the center is h comma k equals to
h comma k equals to 0 comma plus or minus 2, right? So therefore the equation of the given circle or required circle is x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. प्लस और माइनस नहीं आया मैडम? हाँ, હવે મૂકીએ ને આપણે પ્લસ ઓર માઇનસ. y माइनस के. हाँ, y k is plus or minus 2, r square that is 2 square. Now 4. expand these terms. Yes, x square plus y square plus or minus 4y plus 4 equals to 4. So this will become x square plus plus y plus minus 4y equals to 0. yes equals to 0. सही है. मैम एग्जाम में अगर बनाना हो ये क्वेश्चन तो इसे फिगर बनाना नेसेसरी होगा. हाँ, अगर फिगर नहीं बनानी है तो आपको सब कुछ लिखना होगा कि अगर ऐसा है कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, then its center will be on y axis. Now y axis पे center है तो उसका x coordinate 0 होगा. Now the radius is 2, so the center will be 0 plus or minus 2. इतना कुछ लिखना होगा अगर फिगर ड्रॉ नहीं करनी है तो, क्योंकि डायरेक्टली आप सेंटर ऐसा है ऐसा नहीं बोल सकते. फिगर ड्रॉ की है तो मीन्स कि यहाँ से ही आपका सब एक्सप्लेनेशन हो गया. ओके मैम. ये स्पेशल हंसने के लिए अनम्यूट करना जरूरी था. Okay, next question. The similar question will be there. Okay, find the equation of a circle which touches y-axis at origin and has radius 3. સોલ્વ કરી. हाँ, जाते करवानु छे. तो अब ये जो सर्कल है वो y एक्सिस पे मीन्स कि ये y एक्सिस जो है उसको टच कर रहा है, मीन्स कि कर्व इस साइड इस टाइप का होगा. ठीक है, तो सर्कल इस टाइप के होंगे. नाउ इनके सेंटर्स एक्स एक्सिस पे होंगे. ठीक है, और अगर रेडियस जो है रेडियस वो क्या है 3 है. अगर ये 3 है, ओके, अगर वो 3 है, ये लेंथ जो है वो 3 है, तो ये सेंटर क्या होंगे, सेंटर पॉइंट्स. तो एक्स एक्सिस पे है इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो अगर नेगेटिव साइडेड है तो -3, 0 और ये पॉजिटिव साइडेड है तो 3, 0.
ओके, नाउ फाइंड आउट द इक्वेशन। ये मैं नहीं लिखने वाली, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। और अगर ऐसा बोला होता कि सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ फिगर आएगी, सी दिस, इस टाइप की। सिमिलरली इस साइड भी हो सकता है, ठीक है, हमें क्वाड्रेंट नहीं पता है। सिमिलरली इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर दोनों प्लस एक्सिस को टच कर रहा जीरो, है तो यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नो, प्लस और माइनस सिक्स। आंसर मैडम लास्ट। प्लस और माइनस 6x क्या? हाँ 6 हाँ एक्स। हाँ मैडम, ये भूल गई। यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस 6x इक्वल्स टू 0। यस, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया है सबका? यस मैम। ओके, यस। नेक्स्ट। Find the equation of a circle whose x coordinate of the center is -5. क्वेश्चन लिख दो पहले। ये दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, इसके ऊपर से ये थर्ड वाला आपको आना चाहिए खुद से। ट्राई करो। क्या लिख दिया है हमें? गिवन दैट r इक्वल्स टू 4 एंड h इक्वल्स टू -5। ऐसा बोला, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर इज -5। और ऐसा बोला है कि also radius is 4 units, also this circle touches the x axis. Now also given that the circle touches x axis, ठीक है, x axis को टच कर रहा है, तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं? जो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी r, ठीक है। व्हाट इज r? 4। सो k इक्वल्स टू प्लस और -4 एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हमें कौन सा क्वाड्रेंट है वो हमें नहीं पता, तो देयरफॉर द इक्वेशन, नहीं, नो, दस द सेंटर इज
मैम इसका फिगर बनाइए। हाँ बनाती। सेंटर इज y square is equal to 25. h कॉमा k इक्वल्स टू, एक मिनट, ठीक है। यस, मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ उसका। ओके, एक्स एक्सिस को वो -5 पे टच कर रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये -5 हुआ। -5 पे टच कर रहा है मीन्स कि ऐसा ऐसा होगा कर्व, ऐसा। और रेडियस कैसी बोलिए, 4 बोलिए, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे सेंटर होगा। ओके, तो सर्कल इस टाइप का होगा, टाइप ऑफ कुछ होगा, ठीक है। और ये 4 हो गई रेडियस, ये जो लेंथ है वो 4 हो गई। तो ये x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है आपको, ये तो -5, एंड y कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, 4। सिमिलरली इस साइड भी हो सकता है ऐसे, तो तब सेंटर क्या होगा, -5 कॉमा -4, इसलिए हमने प्लस और माइनस लिखा। यहाँ पे भी सी लेंथ कैसी होगी, 4 ही लेंथ होगी। ओके, ये मैं निकाल देती हूँ। अगर ड्रॉ करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट पे जाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। Yes, so therefore the equation of a circle is, वहां पे आगे जो मैंने आपको प्लस और माइनस आर ये वो सब लिखाया था, वो सिर्फ समझाने के लिए था। वो सब प्रोसेस हमने यहाँ पे लिख ही दी है सी, इसलिए हमें जो जनरल इक्वेशन है उसको ही फॉलो करना है। तो y माइनस के यही फॉलो करेंगे हम जनरली, इक्वल्स टू आर स्क्वायर, x माइनस एच तो +5, y माइनस के तो प्लस और माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर। तो x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस, एज इट इज ही रखो इसको, क्योंकि इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा, बट बाकी की टर्म्स तो एज इट इज ही रहेगी। और इसको फिर आपको एक्सपांड करना होगा, तो 16 एज इट इज यही रखते हैं। મેડમ 25 ઓલી બાજુ વહી જાય ને પછી हाँ, तो नेगेटिव થઈ જાય, तो बेटर के आ साइड જ રાખો એને। अब मैं इसको ऐसा नहीं कर सकते, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 8y इक्वल्स टू 0। हाँ ऐसे भी, पर एक को एक्सपांड किया दूसरे को नहीं किया, वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है। ओके, मीन्स कि सर्कल को कोई एक ही पॉइंट पे अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। सी यहाँ पे मैंने बताया है आपको, तो एक ही यूनिक पॉइंट पे ही वो इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ओके, ये टेंजेंट है इस सर्कल का। अब ऐसे ही हमें पता है कि सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बहुत सारे हमें टेंजेंट मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी, बट एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोप्लैनर स्ट्रेट लाइन, कि ये सर्कल जिसमें है वही प्लेन में वो स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट दिस सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है वो लाइन, देन इट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल।
तो उसकी सर्कल की का टेंजेंट हम उसको बोलते हैं, वो लाइन को। नाउ रिमार्क इज रिटन हियर, देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट टू दिस सर्कल, कि एक पॉइंट कोई भी हम पकड़ते तो वहां पे एक ही टेंजेंट होगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट पकड़ लिया तो एक टेंजेंट ऐसे मिलेगा, दूसरा टेंजेंट ऐसे मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसे ऐसे हम ड्रॉ करने जाए तो सी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो गया, तो वो टेंजेंट उसको नहीं बोलते। इसलिए एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलेगा। Then the second one is tangent and radius of the circle are perpendicular to each other at the point of contact, कि जहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है, वहां से हम सेंटर से लेके वो लाइन ड्रॉ करें रेडियस वाली, वो वाली पॉइंट पे, यहाँ पे, तो वो रेडियस और ये टेंजेंट दोनों है, वो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे ही होंगे। सी तीनों फिगर में आपको दिख रहा है, वो 90 डिग्री के एंगल पे ही होंगे, रेडियस और टेंजेंट। लिखना है ये। मैं जितनी भी नोट्स आपको दे रही हूँ सभी में रिमार्क्स और नोट्स जो लिखी है वो सब आपको एमसीक्यू में काम में लग सकती है, तो ये नोट्स रिमार्क्स को स्किप नहीं करना है। ओके मैम। ओके कीप फास्ट एवरीवन। आज ये चैप्टर मुझे खत्म करना है, दो दो एग्जाम्पल्स हमें करने हैं और सिर्फ एक स्टेटमेंट का थ्योरी लिखनी है। ओके आई थिंक हो गया सबका। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो द इक्वेशन, ये लिखने की जरूरत नहीं है। द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल x square plus y square equals to r square is y equals to mx plus or minus r square root 1 plus m square, where this m is slope of a tangent and this r is radius of a circle। ये बात ध्यान में रखना, ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है और r जो है वो रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है,
कि कोई भी सर्कल का, अगर यहाँ पे हम सर्कल जिसका ओरिजिन मीन्स की सेंटर जो ओरिजिन है ना वही वही का की टेंजेंट की बात हो रही है, उसके अलावा अगर कोई मीन्स की ओरिजिन नहीं है यहाँ पे, अगर सेंटर पॉइंट इस टाइप की के सर्कल की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। वो सिलेबस में ही नहीं है, इसकी बात नहीं हो रही है। जिनका सेंटर ओरिजिन है वैसे सर्कल के टेंजेंट ऐसे होंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस आर स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, लिख दो। तो अगर रेडियस ऐसी है और उसका ये टेंजेंट का स्लोप ऐसा है तो उसका इक्वेशन इस टाइप का होगा, उसका इक्वेशन इसका इक्वेशन। Okay, done everyone. Next example directly. Find the equation of a tangent to the circle x square plus y square equals to 1 that is parallel to the line 3x minus 4y plus 4 equals to 0. See, सर्कल का टेंजेंट क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या लिखा है, एम एक्स प्लस और माइनस प्लस और माइनस आर स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। मीन्स की कोई भी सर्कल का टेंजेंट फाइंड करना है तो हमारे पास वो सर्कल की रेडियस होनी चाहिए और वो टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए। इतनी इतनी इंफॉर्मेशन अगर है तो वो सर्कल का टेंजेंट हमें मिल जाएगा। ये दो ही चीजें चाहिए, ठीक है। ये y और x जो है वो तो इक्वेशन के वेरिएबल्स है, तो इसमें और उसके अलावा क्या दिख रहा है, तो m और r ही, ठीक है। तो ये दो चीजें ही हमें चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या बोले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस। इसके ऊपर से रेडियस मिल जाएगी सर्कल की, तो ये रेडियस का काम बन गया, ठीक है, इसका काम बन गया। दैट इज वो और बोला है कि दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो m मिल सकता है या नहीं टेंजेंट का, जनरल इक्वेशन थी मળી જાય। हाँ कया थी, जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप थी મળી જાય ax हाँ by ये तो आनोमर्स है ना, वो तो इसका स्लोप मिलेगा हमें, पैरेलल છે टेंजेंट ને का मैडम, स्लोप। એટલે यस वेरी गुड, m1 दैट m2 इज सेम થશે। पैरेलल, यस यस सही है। वो पैरेलल, ये लाइन और टेंजेंट दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप कैसे होंगे, सेम होंगे। खुद से सॉल्व कर सकते हो आप या नहीं। चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, बाकी का दूसरा आप खुद से करोगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कि गिवन दैट r इक्वल्स टू 1। नाउ जो आगे हम पैरेलल परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस में जिस मैनर में लिखते थे उसी मैनर में यहाँ पे लिखना है। तो नाउ लेट l इक्वल्स टू टेंजेंट, ठीक है, उसको टेंजेंट जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है उसको हम l बोलते हैं और उसका स्लोप जो है उसको हम m बोल देते हैं। नाउ ये L1 लाइन दी है 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड उसका स्लोप m क्या होगा, m1 क्या होगा, माइनस a डिवाइडेड बाई b इक्वेशन के ऊपर से, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 4, तो 3/4। नाउ L इज पैरेलल टू L1 मीन्स की जो टेंजेंट है और ये लाइन पैरेलल है ऐसा बोला है हमें, तो इसके ऊपर से दोनों के स्लोप सेम होंगे। नाउ m1 इज 3/4 सो m इज ऑल्सो 3/4। तो अब हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशंस है,
So therefore the equation of tangent is y equals to mx plus or minus r square root 1 plus m square. तो y इक्वल्स टू m क्या मिला, तो 3/4 इंटू एक्स प्लस और माइनस r क्या है, तो वो 1 है, स्क्वायर रूट 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर मीन्स की 9/16. ये क्या बनेगा, 16 प्लस 9 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 16. तो y इक्वल्स टू 3/4 x प्लस और माइनस 5/4 ऐसा मिलेगा. तो 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 5. हम जनरली ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं. तो क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ये आपका आंसर. प्लस और माइनस है, सॉरी ये प्लस और माइनस है. इजी है, ठीक है. Similarly, the last question. Find the equation of a tangent to the circle x square plus y square equals to 16. ये खुद से करना है आपको. That is parallel to, sorry, perpendicular to the line 12x plus 5y equals to 14. जो आगे लिखा उसी मैनर में लिखना है. रेडियस क्या दी है वो फाइंड कर दो. फिर जो टेंजेंट है उसको एल बोल दो. हाँ, इसका जगह मैम रूट ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर जो कर रहा है मैम. ये सर हाँ, तो कंफ्यूजन हो गया. वो क्लियर हो गया. मुझे लगा कि मैम इसमें माइनस आ जाएगा, तो माइनस रूट अंडर का तो क्लियर नहीं कर सकते हैं. ओके हो जाएगा. ओके. એટલે ભાઈ R4 લેવો કે 16? આ 4 સ્ક્વેર મીન્સ કે આ 16 એટલે 4 સ્ક્વેર છે, તો r શું થશે? 4. યસ. बोल. हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर्स लिखूंगी. r होगी 4. सेंटर क्या होगा, सॉरी सेंटर कहाँ, हमें m की जरूरत है. टेंजेंट का
-12/5 हाँ -12/5 नो ओनली 12 5/12 टेंजेंट का स्लोप 5/12 दिस इज परपेंडिकुलर तो क्या होगा m इंटू एम वन इक्वल्स टू -1 ऐसा होगा ना यस मैम हाँ ऐसा आंसर मिलेगा 5x -12y प्लस और माइनस समथिंग ठीक है वैसे भी मैंने आपको बताया था इससे पैरेलल में हो या परपेंडिकुलर में हो तो किस टाइप का आंसर मिल सकता है आपको राइट आगे जो हमने यहाँ पे देखा सी इससे पैरेलल में थी तो ये ए और बी के कोएफिशिएंट्स जो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा वो सेम रहेगा सी 3x - 4y 3x - 4y क्यों क्योंकि दोनों के स्लोप सेम रहते हैं अब इसमें क्या होगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और ये साइन भी चेंज हो जाएगी तो 5x - 12y टाइप का आंसर मिलेगा प्लस और माइनस समथिंग वो समथिंग आपको फाइंड करना है मैम रूट के अंदर जो डिफाइन कर जाए तो वो तो 119 आ रहा है 119 आ रहा है नो ऐसा नहीं होगा यस 144 प्लस 25 ये क्या होगा प्लस नहीं है ना माइनस होगा ना 169 वन होगा माइनस है ना क्या 1 1 प्लस है ना प्लस यस मैम मैंने हाँ माइनस किया है 169 तो ये क्या है 13 स्क्वायर नहीं 52 आएगा ऐसा आंसर मिलेगा मिला ऐसा आंसर या नहीं यस मैम okay now everyone give your attendance in the chat box and then you can leave so this was the last lecture of this chapter yes मैम ट्यूटोरियल 2.2 अभी तक नहीं आया गूगल क्लासरूम में हाँ कोई बात नहीं ना अभी मिल जाएगा आपको ओके मैम ओके कंप्लीट हो गया हाँ ठीक है मैं आपको वो फॉरवर्मेंस की वहां पे अपलोड कर देती हूँ ओके सो नेक्स्ट वीक मिलेंगे लीव करना कि नहीं हाँ यू कैन लीव एवरीवन यू कैन लीव गुड बाय एवरीवन एक्सक्यूज मी मैम यस करण बताओ मैम पिछले सेशन का अटेंडेंस मैम छूट गया है क्यों छूट गया आप मोबाइल साइड पे रख के बैठ गए थे ना
क्योंकि नहीं सबने मैम, लीव थोड़ा कर दिया था, आप ही थे उसमें सिर्फ। थोड़ा चल गए थे उधर बाहर में, क्यों ऐसा? पानी लाने के लिए मैम। थोड़ी देर रुक जाते, बस 1-2 मिनट की ही बात थी। ठीक है, कर दूंगी आपकी अटेंडेंस, ओके बट मैम। अब से ऐसे बहाने नहीं चलेंगे प्लीज, ठीक है? ओके मैम। ओके, अभी कर दी आपने अटेंडेंस?